Hello students, how are you? I hope you all enjoy very good health at your homes. You all are welcomed in the class 12th and the subject is political science. Students, today we are going to start the topic from the part B, that is politics in India since independence. So let's start the today's topic. See the pictures. These are the pictures of Ram Manohar Lohia, and today we are going to discuss Ram Manohar Lohia and his socialism. First of all, have the introduction. Ram Manohar Lohia, he was the founder of Congress Socialist Party and Praja Socialist Party. In 1936, Jawaharlal Nehru selected him as the Secretary of the Foreign Department of All India Congress Committee, that is known as AICC. Ram Manohar Lohia, born on 23rd March 1910 and he expired on 12th October 1967. So have the look on his childhood. He born in Akbarpur, Agra, that is in UP. He was an activist, freedom fighter, socialist political leader, also worked with the Congress radio, which was broadcast secretly in Bombay until 1942. About his early childhood, when he was only of 2 years, his mother left and he was brought up by his father alone. In 1918, he came to Bombay with his father to complete his high school. Here he completed his intermediate from Banaras University with the first division. Ram Manohar Lohia also wrote his PhD thesis on salt taxation. Now have a look on the books written by Ram Manohar Lohia. He wrote many books. See Dr. Ram Manohar Lohia, उनका चिंतन, thinking of Ram Manohar Lohia, his thoughts. इतिहास एक चक्र, राम मनोहर लोहिया भारत विभाजन के गुनहगार, समता और संपन्नता, राम मनोहर लोहिया आचरण की भाषा, हिंदू बनाम हिंदू. So these are his famous books which were written by Ram Manohar Lohia, and these books shows the socialist ideas of Ram Manohar Lohia. Now let's talk about the socialism. In 1938, Lohia started to develop his own political standpoint by critically examining positions held by the Gandhian leadership of Congress and the communists who had poured into CSP. This is the Congress Socialist Party. In June 1940, he was arrested and sentenced to a jail for 2 years. Why he was jailed? For delivering the anti-war speeches. Already he was released by the end of 1941. Then Lohia became one of the leading figure of the Central Directorate, which clandestinely tried to organize the Quit India revolt that was sparked by Gandhiji in 1942. Lohia was captured in 1944. He was incarcerated and tortured in the Lahore fort as one of the last high security prisons. Lohia, together with the Jayaprakash Narayan, was finally released on April 11, 1946. So students, this was the life summary of Ram Manohar Lohia. Now let's start the socialism. As a socialist thinker, Ram Manohar Lohia की जो image है एक socialist thinker की है, we will discuss this in this slide. This is a very important question students, so listen it very carefully. राम मनोहर लोहिया जो कि एक जाने माने समाजवाद है, सोशलिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी ये सोच, इसके जो रिलेटेड बुक्स हैं उसमें भी अपनी सोशलिज्म के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है. सो वी विल हैव द समरी ऑफ हिज socialist thinking. Okay, so Ram Manohar Lohia, he occupied a unique position in the evolution of the socialist thoughts in India. He was the first socialist thinker in India who refused to accept the Russian or Western model of socialism for India. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में दो तरह की थॉट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी. एक तो रशियन थॉट्स थी और दूसरी हमारी जो अमेरिकन थॉट्स थी कैपिटलिस्ट के रिलेटेड. ये दोनों थॉट्स को राम मनोहर लोहिया जी ने
रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि ये दोनों ही सोसाइटी की फेवर में नहीं थे। क्योंकि लोहिया जी एक सोशलिस्ट थे, तो सोशलिज्म के अंडर उनका ये मानना था कि समाज में जो इनजस्टिस को ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें अर्ली टाइम से, अर्ली लाइफ टाइम से उनके माइंड में थी। His concept of socialism developed at the fairly young age. He was one of the founder of the Congress Socialist Party and the editor of his chief organ, Congress Socialist. His socialistic ideology developed in the company of Acharya Narendra Dev, Achyut Patwardhan, Jayaprakash Narayan, and Ashok Mehta and others. बात करते हैं उनके सोशलिज्म की। तो उन्होंने क्या किया, उसकी फेवर की और उसके अगेंस्ट कौन सी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने विरोध किया। ही रिबेल्ड अगेंस्ट एवरीथिंग दैट अटैक्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जिस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सोसाइटी की, समाजवाद की बात करते हैं, तो जो चीज़ इंसान के, इंडिविजुअल के, व्यक्ति के, उसकी आज़ादी के अगेंस्ट थी, उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। क्योंकि उनकी नज़र में फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। ही यूज्ड टू से वाज नॉट मेयरली द एंड ऑफ स्लेवरी बट इसेंशियली ऑफ स्लैविश मेंटालिटी। उनका मानना था कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हमें जो हमारे स्लेवरी है उसको ख़त्म करना है। स्लेवरी के साथ साथ मेंटल सिचुएशन है, जो मेंटल स्लेवरी है, उसको ख़त्म करना है। मतलब गुलामी सिर्फ शारीरिक तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था गुलामी को मेंटली, जो हमारी सोच में, लोगों की सोच में घर कर चुकी है, उसको ख़त्म करना है। एंड ऑफ द क्रेज टू इमिटेट द बेस्ट ब्लाइंडली। सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि जो हम वेस्टर्न कल्चर को आंखें बंद करके अंधाधुंध उसको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ की जो क्रेज़ है हमारे यूथ में, उसको ख़त्म करना है। इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। Loya placed his original thesis of socialism while presiding over the Panchmari Conference of Socialists in May 1952. Students, this is a very important point. सबसे पहले 1952 में जब पंचमरी में कॉन्फ्रेंस हो रही थी सोशलिस्ट लीडर्स की, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो ओरिजिनल थीसिस था सोशलिज्म का, उसको प्रेजेंट किया। द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द न्यू सोशलिस्ट थ्योरीज वर स्टेटेड दस। हम बात करते हैं कि उनके सोशलिज्म में कौन कौन सी मेन थ्योरीज है, मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म आर द बेस्ड अपॉन द सेंट्रलाइज्ड पावर। उनका मानना था कि ये दो थ्योरीज है, अमेरिका का कैपिटलिज्म, रशिया का कम्युनलिज्म, ये दोनों ही एक्चुअली चीज़ों को, ताकत को, सत्ता को, मटेरियल को ये एक जगह पे एकत्रित करती है। जबकि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि समाज में एक तब्दीली आए, बड़े लेवल पे तब्दीली आए समाज में, तो जो कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म से संभव नहीं थी। तो उन्होंने दोनों को नकार दिया। कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में उनका ये मानना था कि ये प्रोडक्शन के दोनों साधन हैं। एक में तो प्रोडक्शन ये है कि कैपिटलिज्म है जो इंडिविजुअल के प्रॉफिट के लिए बात करती है, जो दूसरा कम्युनलिज्म है उसमें इंडिविजुअल के प्रॉफिट की कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि समाज में ऐसा सिस्टम बना है कि प्रॉफिट आम लोगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर कुछ लोगों के हाथ में है। तो सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें सारी चीज़ें कुछ व्यक्तियों के या कुछ ग्रुप तक या कुछ पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित रहे। उनका मानना था समाजवाद में, सोशलिज्म में प्रोडक्शन के मीन्स, प्रॉफिट्स, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें लोगों में बराबर बराबर आनी चाहिए, सारे लोग इसको इंजॉय कर सकें। So political and economic objective of socialism, they are only to establish a free and decentralized society. ये decentralized society मतलब जहाँ पे जो हमारा पावर्स हैं वो एक के हाथ में ना होने की बजाय समाज में पूरी तरह सब में बराबर बराबर रखी जाए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए उसका। तो ये सब कैसे हो सकता है कि जब वो कैपिटलिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करके, कैपिटलिज्म को ख़त्म करके सोसाइटी में एक समाजवाद, एक ऐसा तत्व, ऐसा समाज स्थापित करें जिसमें जो पावर है लोगों के हाथ में होनी चाहिए और समाज में हर किसी को उसका जो है हिस्सा मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन होना चाहिए समाज का, एक उसका उसारू जो क्रिया होनी चाहिए समाज को बनाने की। ये सब तभी हो सकता था जब समाजवाद को पूरी तरह से लोगों में उनको जागृत किया जाए, उसको लागू किया जाए।
सो लोहिया मेड स्ट्रॉन्ग प्लिया फॉर न्यू सोशलिज्म। उसने न्यू सोशलिज्म का जो हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा था उसमें मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से थे। सो लेट्स डिस्कस द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। तो उसने नियर अबाउट बात की मैक्सिमम अटेनेबल इक्वलिटी। समाज में मैक्सिमम इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण इक्वलिटी कभी नहीं आ सकती। जो लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हाई डेजिग्नेशन पे, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पे स्केल्स एक पियोन के साथ मैच नहीं कर सकती, एक वर्कर के साथ मैच नहीं कर सकती, तो पूरी तरह से समाज में इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आ सकती। तो मैक्सिमम इक्वलिटी लेके आ सकते हैं, उनका जो गैप है उसको कम से कम कर सकते हैं। सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी लगाई जानी चाहिए, 4 पिलर स्टेट, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। वी विल डिस्कस दिस 4 पिलर आइडिया ऑफ स्टेट इन द लास्ट स्लाइड। सो एक डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए लोगों का, जो समाज में रहते हैं उनका जीवन स्तर एक डिसेंट होना चाहिए। एंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, राजनीतिक सिस्टम, एक गवर्नमेंट, एक सरकार, एक पार्लियामेंट, जो लोगों में इक्वलिटी लेके आने के लिए, उनका डिसेंट जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोहिया ने अपने विचार जो थे सोशलिज्म में रखे। लेकिन सबसे जो उनका अहम, सबसे जो नंबर 1 उनका जो प्रिंसिपल था वो था इक्वलिटी, बिकॉज इक्वलिटी वाज सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लोहियास कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। इक्वलिटी के बिना हम सोशलिज्म के बारे में सोच भी नहीं सकते। सो इक्वलिटी वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लोहियास कॉन्सेप्ट। इन हिज ओन वर्ड्स, सोशलिज्म इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी। उनका मानना था कि सोशलिज्म, समाजवाद का मतलब ही क्या है, इक्वलिटी है, सब में समानता होनी चाहिए। जितनी देर तक हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से समाजवाद को लागू नहीं कर सकते। सो लोहियास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी वाज यूनिक, ये सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। इफ देयर वाज नो इक्वलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो सम नेशंस, justice, human dignity, morality, brotherhood, freedom, universal welfare could not flourish in the society। उनका मानना था कि जब तक हम इक्वलिटी नहीं लेके आते, समाज में समानता नहीं है, तो हम कभी भी जस्टिस की बात नहीं कर सकते। जो मानव की डिग्निटी है, आदर्श है, उनकी मॉरलिटी है, भाईचारे की भावना है, आज़ादी है, तो यूनिवर्सल वेलफेयर है, सबका एक जैसी भलाई है, वो हम कभी स्थापित नहीं कर सकते। सो इन सब के लिए क्या करना चाहिए, इक्वलिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इक्वलिटी को लागू करने के लिए, समानता को लागू करने के लिए उन्होंने अपनी सोच में उसको जोर दिया। देन लोहिया रिकमेंडेड 7-fold रेवोल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी एंड जस्टिस। जो हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी है, दैट इज इनइक्वलिटी और इनजस्टिस। मतलब लोगों को में असमानता है और उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो इस सब के लिए उन्होंने रिकमेंड की 7 तरह की क्रांति, इसको सप्त क्रांति भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस विल बी द मेन क्वेश्चन। यू हैव टू डिस्कस द 7-fold रेवोल्यूशन ऑफ राम मनोहर लोहिया। जो सोशलिज्म था, उनका समाजवाद था, उसमें 7-fold रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 7-fold रेवोल्यूशन में क्या था। दिस 7-fold रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट रिवोल्टिंग फॉर इक्वलिटी। जैसे हमने अभी बात की है कि इक्वलिटी को उन्होंने मेन प्रेफर किया, तो इक्वलिटी में आगे उन्होंने फर्दर बताया कि इक्वलिटी किस में होनी चाहिए, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो हमारे कंट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको ख़त्म करना है, और जो मैन और वुमेन है वो इक्वली ट्रीट होनी चाहिए। देन सेकेंड उन्होंने बात की एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन कलर। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर के नाम पे, स्किन कलर के नाम पे, ब्लैक और वाइट के बीच में, तो जो भेदभाव है, इनइक्वलिटी, इसको अबॉलिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बात की एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ बर्थ एंड कास्ट। हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे, तो बाय बर्थ जो हायर कास्ट में पैदा होते थे उनको ज़्यादा प्रोविजंस मिलते थे। तो राम मनोहर लोहिया जी ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि जो बर्थ और कास्ट बेस पे इनइक्वलिटी या असमानता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए, तो ही समाजवाद संभव हो सकता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब जो लोगों में उनकी इकॉनमी को लेके, उनके पैसे को लेके, उनके स्टैंडर्ड को लेके, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को लेके जो इनइक्वलिटीज है समाज में,
उसकी वजह से भी सोशलिज्म नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे आनी चाहिए, उनका मानना था कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। प्रोडक्शन के जो सोर्सेज है, उत्पादन के साधन हैं, वो भी समाज में बराबर होने चाहिए, मैक्सिमम लोगों के हाथ में होने चाहिए, रेदर देन इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, कि एक जगह पे एकत्र होने के बजाय या एक गवर्नमेंट एक पार्टी के हाथों में होने के बजाय ये समाज में होने चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। सो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं तो उनका मानना था कि अगर हम अपने कंट्री में अपने देश की आज़ादी चाहते हैं, सॉवरेनिटी चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉरेन के विदेशी इन्फ्लुएंस है, विदेशी प्रभाव है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। क्योंकि अगर कंट्री विदेश के प्रभाव में रहेगा तो हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी प्रभुसत्ता को खतरा हो सकता है। देन ही टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। हमारे जो लोगों की आपस की जो उनकी इंडिविजुअल लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है, उसमें भी प्राइवेसी होनी चाहिए। फ्रॉम ऑल कलेक्टिव एनक्रोचमेंट, किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए बाहर से। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की लिमिटेशंस ऑन आर्मामेंट्स। आर्मामेंट स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो हम न्यूक्लियर वेपन्स को जमा करने में लगे हैं, तो इसकी जो डिसआर्मामेंट मतलब कि मैक्सिमम जो जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन जमा करें, तो सारा हमारा जो प्रोडक्शन है, खर्चा है, उसका फोकस गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ज़्यादा करती है। तो इस कंडीशन में पुअर लोगों पे या सोसाइटी पे, उनकी वेलफेयर पे ध्यान नहीं जाता। तो लोहिया जी का मानना था कि आर्मामेंट्स जो हमारे हथियारबंदी है, इनके ऊपर कम से कम जोर देना चाहिए और ये इनको लिमिट कर देना चाहिए। एक लिमिट तक ये हथियार जमा होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो समाज की जो भलाई है, वेलफेयर है, उसमें रुकावट बन सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दी इनइक्वालिटी को। जो कास्ट की इनइक्वालिटी है, ये आपका एक स्मॉल 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कास्ट इनइक्वालिटी। मतलब अगर हमारे सोसाइटी में कास्ट बेस पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ हो रही है, तो हमारा समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उस कंडीशन में हम सोशलिज्म, समाजवाद स्थापित नहीं कर सकते। तो ही लुक्ड एट द प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ एबॉलिशन ऑफ कास्ट एट द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसको बहुत सीरियस डिजीज़ उन्होंने माना है, क्योंकि ये हमारे समाज की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। तो लोहिया का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हमारे समाज में कास्टिज्म ना होता तो शायद हम फॉरेन के जो रूल उनके अंडर रहे हैं, उनके कब्जे में रहे हैं, इतने साल गुलामी की है, शायद वो ना होता। ये मेन कारण यही था फॉरेन इन्वेजन का, casteism. So Lohiya didn't emphasize on education only while picking up the Shudras for positions of leadership. उनका मानना था जो छोटी जाति के लोग हैं, शूद्रज हैं, उनको भी लीडरशिप पे, उनको भी हाई लेवल पे लेके आना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन तक बात करने से हम समाजवाद नहीं लेके आ सकते। एजुकेशन के साथ साथ हमें जो लोअर कास्ट पीपल हैं, शूद्रज हैं, उनकी पोजीशन को भी अपलिफ्ट करना होगा। देन उनकी एक और रेवोल्यूशन है इकोनॉमिक इक्वलिटी। मतलब जो इकॉनमी में रिच और पुअर का गैप है, इसकी वजह से भी हमारा समाज जो है प्रॉपर वेलफेयर सोसाइटी नहीं बन सकता। सोशलिज्म को हम प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर सकते जितनी देर हमारे समाज में इकोनॉमिक इक्वलिटी है। तो इसके लिए प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं, उनकी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू इट शुड बी फॉर द मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए। और जो हमारे नेसेसरी, जो हमारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिनकी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए और वो भी सारे लोगों के लिए इक्वल होनी चाहिए। खास करके कलर्ड पीपल, मीन्स यहाँ पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इट वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर अगेंस्ट रिच। कई बार ऐसा होता है कि रिच पीपल के पास जो प्रोडक्शन सोर्सेज उनके दे आर सेंट्रलाइज्ड टू द रिच पीपल ओनली। तो इसकी जो उन्होंने अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ किया है कि रिच पीपल के बजाय जो पूरे समाज में, पूरे आम लोगों में, कलर्ड पीपल में इसको पूरी तरह से देना चाहिए जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, तभी सबको बेनिफिट हो सकेगा। इसके अलावा राइट ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम, ये भी उन्होंने लोगों के लिए रिकमेंड किए। अगर एक समाज में हम चाहते हैं तो लोगों की, इंडिविजुअल की प्राइवेसी और फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सारी उसकी 7 रेवोल्यूशन। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो हमने अभी डिस्कस किया है, आर्मामेंट्स। तो ये जो हथियारबंदी है, इसको अबॉलिश करना चाहिए। जो वेपन्स हैं वो सिर्फ
हमारी एक लिमिट तक होनी चाहिए, हमारी डिफेंस के लिमिट तक होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का और जो हमारी कंट्री है उसका फोकस हथियारबंदी की बजाय, हथियार जमाबंदी की बजाय लोगों को जस्टिस देने के लिए होना चाहिए, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को इंक्रीज करने में होना चाहिए। तो ये हमारे सोसाइटी में सोशलिज्म लेके आने के लिए बहुत अहम पॉइंट है। तो वी शुड अबॉलिश द वेपन्स, दैट वाज टू अबॉलिश द इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। अगर हम समाज में इनइक्वालिटी, असमानता और इनजस्टिस, अन्याय को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सप्त क्रांति, ये सप्त क्रांति जो 7 रेवोल्यूशन हमने भी पढ़े हैं जो इक्वालिटी को लेके थे। अगर समाज में इक्वालिटी लानी है और जो असमानता है उसको ख़त्म करना है तो लोहिया का मानना था ये दिस इज़ द हेल्थ फॉर सेंग पोस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो एक तरह की ये सप्त क्रांति उनके सोशलिज्म का मेन बेस है। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रेस दिया 4 पिलर स्टेट में। जो लोहिया का सोशलिज्म है, लोहिया का समाजवाद है, एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें स्टेट के 4 पिलर होने चाहिए। ये कौन से पिलर है स्टूडेंट? ये आपका 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। द 4 पिलर स्टेट, दैट वाज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लोहिया सोशलिज्म। In order to achieve the true socialism, लोहिया evolved the concept of 4 pillar state. एक उनकी कॉन्सेप्ट, एक धारणा है 4 पिलर स्टेट में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 पिलर हैं स्टेट के, 4 जो उसके इम्पॉर्टेंट जो उसके बंद हैं वो कौन कौन से हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम होने चाहिए। ये है हमारा सबसे पहले द विलेज, देन द डिस्ट्रिक्ट, द प्रोविंस एंड द सेंटर। इन चारों को लेके हम चलेंगे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी एक तरह की हमारे संसाधनों की, पावर की। विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस और सेंटर, ये हमारे 4 मेन पिलर हैं। अगर इनको लेके हम चल रहे हैं तो इक्वलिटी हो सकती है और जो सिटीजन की डिग्निटी है, उनकी लाइफ स्टाइल है, समाजवाद को सही तरह से स्थापित करने में दिस इज द वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज द 4 पिलर स्टेट आइडिया दैट वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। तो अब लास्ट में देखते हैं एक उनकी समरी देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी अकबरपुर में जो आगरा में है वहाँ से पैदा हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बीए किया और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया। वो एक बहुत माने परमाने हमारे सोशलिस्ट लीडर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे पहले, देन उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। इसके अलावा जो हमारे उस टाइम आज़ादी की मूवमेंट थी, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें एक्टिव प्लेयर के रोल प्ले किया। So students, thanking for being here and listening the topic. I suggest you to watch the video repeatedly to have the better outcomes. अगर आप चाहते हो कि अगर इसको अच्छे से समझना है तो रिपीटडली वीडियोस को देखें और जो राम मनोहर लोहिया जी का सोशलिज्म है उसके जो आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको बहुत ध्यान से सुने। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू सेव द वीडियो, keep it save in the save list and don't forget to subscribe the channel. Thanking students, we will be again there with a new topic. Till that, goodbye.